Yes, I have joined you, madam. Welcome, sir. Good evening and a warm welcome, sir. Privileged to have you. It's a My privilege to have pleasure, you. my pleasure. Yes. So we'll wait for a few more minutes. We'll wait for some of the viewers to join. How many people have already joined us? So Do they're you still have a coming. count? Yeah, they're still coming as we have just come on live. Okay. So how are the things going on in this lockdown? In I this think we are lockdown, waiting. initially, all hospitals, for that matter, had problems. Problems in sense, people were scared whether to go to the hospital or not to go. And fortunately, in Gautam Hospital, where I am working, the number of patients came down to about 25%. Hmm. But I have personal knowledge that many hospitals had zero attendance. Oh, So oh, that way we were fortunate that we were serving people. yes. I can I can see some names. Brijesh Sharma, Khan joining us, Adil Khan, Yes, sir. We are just 37.37. Okay. So that way, then gradually this number is increasing. And yes, now sir. it seems that people have started living with COVID. And now People they've have accept, yes, people yes, have sir. accepted that it's Yes. a disease which is going to be for a long time. And And many of them have also, I mean, they're okay with it even if they do not wear mask and even if they go in the crowd. So people have changed themselves like that, maybe because of the but that awareness. is that is too risky a behavior. That Yes, is sir. too risky a behavior. I would advise that we should always wear mask while working and also when we go out of the house, Yes, sir. because it should be presumed that every person we meet is a positive. Right. Yes, sir. Then we can save ourselves. Otherwise, you don't know, because some people are absolutely asymptomatic. Some people don't develop symptoms because their immunity is good, Yes, but they sir. are positive. They are positive and they are the Uh, carriers. I think you know Mrs. Sumitra Singh very well. Yes, yes, sir. She was speaker of the Rajasthan Assembly. Yes. She and her husband both were detected positive. Oh, And her husband Nar Singh ji, he expired. oh, oh. Yes, Because and of Sumitra COVID. Singh ji survived and she is back home. Hmm. But the death is so tragic Hmm. that you cannot even see the person when the last ceremony is being done. Yes, sir. They don't go for funeral. They are buried, you know. That's very So if you want to take that risk that you want to leave this world without seeing your own people, yes, then you sir. can avoid mask. Yes. That is the message. And that grief is rather, a deeper grief. Yes. Yes, sir. So I think a couple of people have joined, so we can start Yes. with our session today. And Yes. I would again like to welcome you, and it is a privilege to have you, sir. And thank you so much for giving your time. And It's my so privilege, and you always command my time. thank you very much. Okay. Tell me. So we are going to talk about depression, sir. There are so many people, and I think in this lockdown, basically because of this corona, depression Hmm. cases are increasing. Okay. Depression is increasing in all the ways, like students not going to school, students who are not able to give their examinations, whose exams got postponed.
students who are appearing for their NEET, for their engineering and IIT and IAS civil services. All of them, they for a time they got depressed. Everybody got depressed. So, and we have been reading on and off about the news. So, sir, basically, I would want you to tell everyone. I would want to know what depression is. Well, there are two things which we must understand. One is depression as a normal emotion. उदास कौन नहीं होता? बिल्कुल सर. सब होते हैं. Everybody gets sad. But normal response to events, when individual becomes sad, that should not be taken as clinical depression. Yes, sir. Feeling sad is all right. Feeling sad because of some events is okay. Feeling sad, feeling happy. If you don't see darkness, you don't realize the value of brightness. Right, absolutely right, sir. Isn't it? Yes. So if you have gloomy mood and if you have pleasant mood, it is only then that you differentiate the two, the Yes. gloominess and the happiness. Right, absolutely. Now, coming to the clinical depression, when a person remains sad, when this sadness interferes with his day-to-day activity, this sadness starts interfering with his productivity, and the person is all the time sad, lying down, feels negative. At the same time, I would request all the viewers to please unmute themselves. If you keep unmuted, you will be able to hear my voice better. Except Manisha and me, let all other people be unmuted at the moment. At the end of the talk, we will have some time for question answers. And at that time, you can raise your hand, unmute yourself, Yes, I ask think your question. you can Ask your question. Yes, you can ask your questions. You can write the questions in the comment box as well. Absolutely. On the comment box, you write your question. Okay. So that depression, which is a normal emotion, should be understood. And depression as a disease should be identified. How to identify this clinical depression? Number one, if your depressed mood has remained, you have remained depressed over a period of 2 weeks continuously. Number two, it has started affecting your emotional life. You are crying all the time, you are irritable, you are feeling sad, gloomy, and that interferes with your work. Then other emotions which normally we have for other people, for your son, for your daughter, for your wife, for your mother, for other people, for your friends. Those emotions, if you tend to lose and you feel gloomy all the time, and if it continues for a period of 2 weeks, then you must consider that it is probably going into a clinical depression. Then third thing which is very important is your biological activity. Your biological activities go down in the depression. You don't feel like eating, loss of appetite, you don't get proper sleep, you are not able to sleep for 7-8 hours. Even if you sleep, your sleep is broken and you sleep, जैसे टुकड़ों में नींद आती है. It is a broken sleep. And when you get up in the morning, you are not fresh. That morning freshness after the sleep, it should be there when you get up. Then, if you are married, your interest in your sexual life, it declines in people who are depressed. They don't feel like
approaching the partner at all. They are so depressed that things don't attract them. And even if they try, they don't have the libido, they don't have erection, they don't have even the females, they are frigid. So this is biological activity. So sleep, appetite, bowel and bladder, your people become constipated. People have problems in the gut, and sexual activity. There is a decline in all biological activities. There is a decline in emotional feelings. And one feels sad all the time. These are symptoms which should help us to identify if they remain for more than 2 weeks continuously. It calls for consultation with people like Manisha, clinical psychologists, or people like me who are psychiatrists who prescribe medication apart from what Manisha offers to you, that is counseling, psychotherapy, and how to handle depression. Those things. So this is how to identify. One very important factor which I would like to add here is suicidal behavior. So I would ask you, I will certainly come up on this question, but I have one question in between. So yes. Often, when they go through the relationship issues, some, if they have some family relations or disturbances in the relations, or some office traumas, or some office difficulties, some transfers. So, I've often heard people saying, "Oh, I'm so depressed. I had a transfer." Is there I want to make them clear that the difference between sadness and depression. Exactly. That is what I told you. If you don't feel sad, you don't feel happy. Sadness and happiness are the two sides of a coin. Okay? But what Manisha had just said, office problems, problems with work, tussles between husband and wife, mother-in-law and daughter-in-law, family problems, loss of money, loss of power, loss of post, किसी की पद कम हो जाता है, and then other factors which we call as stressful life events. There are almost 57 stressful life events which have been identified, which occur, and within 6 months to 1 year after that stressful life event, which includes death, which includes break of relationship, which includes marriage, which includes break in marriage, which includes engagement, which includes death of a pet animal, including a cow and buffalo in rural areas. साहब मेरी भैंस मर गई और उसके बाद से वो महिला डिप्रेस्ड है. Such kind of, there are 57 stressful life events which were identified earlier. 58th stressful life event which we added after our research is elections. Even general election is a stressful life event. Not only people who don't get a ticket, or who fight an election, or who lose an election, or who win an election, but even people who are conversing for them, people who are drinking, who are taking intoxicative substances, people who are spending sleepless nights, all these people are under stress. Family members and people who conduct elections. Government servants, when they go, they say, "Oh my God, how will I conduct election?" And if something happens, then all these people are stressful. So these stressful life events related to life, related to living, related to people around us, related to the environment around us, and related to financial matters, they are all stressful life events.
and stressful life events greatly affect us, there are pleasure hormones in our body. These hormones are called as dopamine, serotonin, then we have estrogen in case of ladies, then we have oxytocin, a hormone which is available in ladies. These hormones are called pleasure hormones, and these pleasure hormones have an increase when we are happy, and these pleasure hormones decline when we are depressed. And that is why people who are given medication to improve the levels of hormones, they improve from depression. But at the same time, people who are depressed, if they are counseled well, if they are given proper psychotherapy like what Manisha gives, cognitive behavior therapy, or regular counseling, how to handle these stressful life events, how to handle stress, how to be relaxed, all these things when a clinical psychologist teaches, then those things also lead to improvement in the pleasure hormones. When we do yoga, when we do meditation, when we do other life relaxing activities, including walking, rigorous walk, including pranayama, our pleasant electrical activity in the brain, and the hormones which are pleasure hormones, they improve. So depression as a clinical identity should be identified when we are meeting people around us. एक आदमी जो पहले बहुत जोवियल रहता था, एक आदमी जो पहले बहुत खुश मिजाज था, अचानक आपने देखा कि वो आदमी बहुत उदास रहने लगा। वो आदमी कभी कभी ऐसे भी कहता है कि मैं निराश हूं, कभी कभी वो हिंट देता है कि ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि ना रहे होते। तो उस स्थिति में हमें यह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि संभवतया ये व्यक्ति डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त है। सर, जब डिप्रेशन आता है, अक्सर लोगों को ये भी सवाल रहता है कि इज दिस डिप्रेशन मोर इन मेल्स और फीमेल्स? हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन मोर? हु इज मोर प्रोन टू डिप्रेशन? देखिए, डिप्रेशन जो बीमारी है, मैंने जो आपको 4 प्लेजर हार्मोन्स बताए, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड ईस्ट्रोजन, उसमें ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन जो है वो बाकी 2 हार्मोन्स के अलावा है जो फीमेल्स में पाए जाते हैं। बिल्कुल, मेल्स में इनकी प्रिडोमिनेंस नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। लिहाजा फीमेल्स जो हैं वो बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर सेक्स है। फीमेल इज ए बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर सेक्स। बहुत सारी स्ट्रेसेस जो मेल सहन नहीं कर पाते, फीमेल सहन करती हैं और उनका समाधान निकालती हैं। वो फीमेल सेक्स स्ट्रॉन्ग क्यों है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आपका स्पेसिफिक सवाल था कि किसमें ज्यादा होता है, तो क्लिनिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि डिप्रेशन मेल्स की तुलना में से फीमेल्स में 2 गुना ज्यादा होता है। डिस्पाइट ऑफ दिस कि वो बायोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसके बावजूद भी उनमें, उसका कारण क्या है कि फीमेल्स आर मोर इमोशनल एंड मेल्स आर मोर राशनल। जो राशनल आदमी होता है वो डिप्रेस्ड नहीं होता, और कई तो इतने ढीठ होते हैं, कहते हैं कि मोटी चमड़ी के हैं, इमोशंस का प्रभाव ही नहीं होता तो वो डिप्रेस कहां से होंगे, है कि नहीं है? लेकिन महिलाएं तो बहुत इमोशनल होती हैं। उनको जरा सी बात पर आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में होती है तो रोना आ जाता है। मेल्स को रोना बहुत कम आता है, उनके इमोशन वो अंदर दबा लेते हैं, नीलकंठ हो जाते हैं। सर, आई गेस उसका एक ये भी कारण होगा कि मेल्स का आउटर एक्सपोजर ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स। एब्सोल्युटली इस जनरेशन में होने लगी है, बट अगर हम देखें जनरेशंस में, तो जो हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी,
उसमें वर्किंग वुमेन जितनी नहीं थी. एंड इफ वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, तो वहां तो उनको घूंघट में ही रहना पड़ता है, तो उनका एक्सपोजर नहीं होता. मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. घूंघट में रहे नहीं रहे, जो घूंघट में बिना घूंघट रहती हैं उनका भी बहुत सी ऐसी हैं जिनका एक्सपोजर नहीं होता. हाँ. लेकिन जो घूंघट में रहती है वो तो वाकई में बहुत कम एक्सपोजर होता है. एक छोटी सी आंख निकाल के टेलीविजन देखती हैं वो घूंघट में से. राइट. बिल्कुल. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि जैसे हमने मेल्स और फीमेल्स की बात करी, आई विल कम अप टू द टीनेजर्स नाउ. कि जो टीनेजर्स उनके डिप्रेशन में, आई मीन हाउ कैन दे हैंडल द डिप्रेशन, और हाउ कैन दे आइडेंटिफाई देयर ओन डिप्रेशन. जैसे मैंने आपसे अभी कॉलेज की इन सब की बात करी थी कि एग्जाम्स नहीं हो पा रहे, इस वजह से वो डिप्रेस हो रहे हैं. पढ़ाई करी हुई है, अब इतना टाइम और लग जाएगा. देखिए टीन एज जो है वो ऐसी एज है जिसमें जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है ना. जी बिल्कुल. एक बार पानी ऊपर आता है और एक बार पानी बिल्कुल नीचे जाता है. टाइड्स एंड वेव्स इन द ओशन. ठीक उसी तरह से ये जो एडोलसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें भी उतार चढ़ाव आता है इमोशंस का, भावनाओं का. और ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, इसको समझना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव बड़ों में नहीं आते, लेकिन एडोलसेंट्स में ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं. उसका कारण क्या है कि एडोलसेंट साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग है. एडोलसेंट बच्चा 12-13 साल का अपने पिताजी जितना लंबा हो जाता है कई बार, और दूसरे बच्चों की तुलना में वो बच्चा क्लास में भी बड़ा है, तो वो सोचता है कि मैं तो इतना बड़ा हो गया, तो मैं क्यों नहीं बड़ों की तरह व्यवहार कर सकता. ये उसके मन में आता है. दूसरा एक बच्चा जो कि 13-14 साल का ही है, लेकिन उसके माँ बाप का कद छोटा है, लिहाजा जेनेटिकली उसका कद बहुत छोटा रहेगा. तो वो उसको देखता है कि यार ये भी 13 साल का, मैं भी 13 साल का, ये तो इतना लंबा हट्टा चौड़ा और मैं बिल्कुल छोटा सा. तो उसके मन में एक हीन भावना आती है, उसके मन में एक फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी आती है. एक दूसरा पहलू भी इसका है जो इंटेलिजेंस का है. एक आदमी एक बच्चा जो लंबा चौड़ा तो हो गया, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है. और एक बच्चा जो छोटा सा है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसके मन में ये विचार भी आ सकता है कि एग्जाम आने दे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, मैं दिखाता हूं इसको. यू अंडरस्टैंड? दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज ए साइकोलॉजी ऑफ एन एडोलसेंट. दैट्स राइट. दूसरा, एडोलसेंस में एक इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग विद द एडल्ट्स. इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन फिनोमेनन. एक एडोलसेंट बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई करता है दूसरे बच्चों के साथ, वो आइडेंटिफाई करता है एडल्ट्स के साथ, वो आइडेंटिफाई करता है हिस्ट्री की किताब में जो महापुरुष हुए हैं उनके जीवन के साथ, वो आइडेंटिफाई करता है अपने एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनके साथ. और वो लड़का हो या लड़की हो, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो कहते हैं मैं अमुक सर जैसा बनना चाहता हूं. वो आइडेंटिफाई करता है कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूं. वो आइडेंटिफाई करते हैं एडोलसेंस में कि मैं अपनी टीचर जैसी बनना चाहती हूँ, या अमुक डॉक्टर साहब जैसी बनना चाहती हूँ, या मैं महारानी लक्ष्मीबाई जैसी बनना चाहती हूँ, या इंदिरा गांधी जैसी बनना चाहती हूँ, या फिर मैं कोई सिने स्टार से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ, लंबा चौड़ा हूं मैं तो, या मैं बनना चाहता हूँ शाहरुख खान जैसा, या मैं ऐश्वर्या राय जैसी बनना चाहती हूँ. डिपेंड करता है. दे कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द हिस्ट्री बुक, दे कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दे कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द स्मॉल स्क्रीन और द बिगर स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन और द सिनेमा. So depending upon whom they identify with, the identification takes place. कुछ समय के बाद जब वो उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि एक सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है,
और वो देखते हैं कि ये सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो बेकार है, मैं तो इन सर जैसा बनना चाहता था और ये तो स्मोक करते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, ये बात करते हैं तो गंदी बातें करते हैं, आई डोंट वांट टू बी लाइक हिम, एंड द सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन चेंजेस, देयर इज ए चेंज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एंड समटाइम्स देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस। ऐसा कहते हैं कि महात्मा गांधी हैड नो बडी विद whom he could identify. He himself lived in identification crisis, and he became महात्मा, बापू, जिससे सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब बड़े बड़े लोगों की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो एडल्टहुड तक नहीं होता। तो बच्चों में let us complete the adolescence process. तो एडोलसेंस में एक तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटेलिजेंट वर्सेस नॉन इंटेलिजेंट, एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग वर्सेस फिजिकली वीक, एक होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, एक जो होता है बहुत से बच्चों में सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बहुत से बच्चे, कल एक बच्ची मेरे पास आई थी, शी वॉज टच्ड बाय एन एडल्ट इन हर अर्ली चाइल्डहुड when she was 6 years or 7 years old, and touched at a place which was a bad touch, absolutely bad touch. अब उसको जब वो बड़ी हुई तब उसको ये महसूस हुआ कि it was a bad touch, and she became very anxious, nervous, depressed. कि डॉक्टर साहब मुझे वो याद आता है। तो उसका डिप्रेशन ठीक करना है, और उसके जो ऑब्सेसिव आइडियाज उसके दिमाग में बार बार आते हैं कि वो दैट वाज बैड टच। तो मैं उनको अक्सर कहता हूं कि बेटा, हम जब जा रहे होते हैं गली में और बाय चांस हमारा पांव कीचड़ में चला जाता है तो हम क्या करते हैं, पांव को क्या करते हैं? वो कहती है सर हम घर आते हैं, उसको वॉश कर लेते हैं, उसको 2 बार धो लेते हैं, हमारा पांव शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से जो जीवन की इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो बैड टच से संबंधित हो या वो होमोसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, जो कि एक एक्सप्लोरेटरी रिलेशनशिप होती है एडोलसेंस की एज में, वो रिलेशनशिप हो, तो जब हम जिस तरह से हम अपने पांव को धो लेते हैं उसी तरह से हमारे कन्फेशन से हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, और उसके बारे में जो गिल्ट होता है, ग्लानि होती है, हम उस ग्लानि से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एडोलसेंट्स बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेके आते हैं। घर में वातावरण ऐसा है, घर में तो मुझे राजपूती ड्रेस पहनने को कहा जाता है, स्कूल में कॉलेज में मैं जाती हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मैं जीन्स शर्ट पहनूं, मैं टॉप्स पहनूं, मैं उस तरह की ड्रेसेस पहनूं जिसमें कंधे नंगे नजर आते हैं, और राजपूती ड्रेस में तो मेरा पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। व्हाट शुड आई डू? कॉन्फ्लिक्ट बच्चे के दिमाग में रहता है, एनवायरनमेंट डिमांड्स एंड द फैमिली डिमांड्स। इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एडोलसेंट बच्चों के दिमाग में होते हैं, और मैं समझता हूं कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके पीपल लाइक मनीषा कैन हेल्प, साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प, और उसके लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन वही एडोलसेंट जब पढ़ाई में उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है, वो जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वही एडोलसेंट जरूरत से ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, वही एडोलसेंट कुछ काम करने में उसका मन नहीं लगता और एकांत में जाके कमरे में बैठ के चुपचाप बैठने लग जाता है, तो उस एडोलसेंट का हमें डिप्रेशन आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर वो ज्यादा चिड़चिड़ा है, अगर वो अग्रेसिव है, तो उसका एग्रेशन भी जो है वो डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। इसलिए हमें नॉर्मल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं एडोलसेंट्स में, जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। कैरियर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ये बनूं या ये बनूं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि एडोलसेंट साइकोलॉजी अपने आप में 1 घंटे का विषय है, 1.5 घंटे का विषय है।
लेकिन अभी मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बता दी हैं. आई हैव टोल्ड यू द इम्पोर्टेंट इश्यूज. कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. So I would come to the next question that how does depression lead to suicide? Absolutely. See, suicidal behavior. मैं आपको एक बात बताऊं कि सुइसाइड जो होती है वो सिर्फ डिप्रेशन में ही नहीं होती. Right. सुइसाइड कई तरह से होती है. कई बार सोशल फैक्टर्स से सुइसाइड होती है, कई बार फैमिली फैक्टर्स से सुइसाइड होती है, परिवार की अपेक्षाएं कुछ और होती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं कुछ और होती हैं. आई एम वेरी हैप्पी 360 पीपल हैव जॉइंड. इस पे लिखा हुआ आ रहा है. वेरी नाइस, वेल डन मनीषा. तो सुइसाइडल बिहेवियर अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिहेवियर है. हमें एक बात तो ये समझनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो सुइसाइड अटेम्प्ट करता है, चाहे वो सुशांत सिंह है, चाहे वो दूसरे सिनेटर्स हैं, चाहे वो गांव का एक व्यक्ति कुएं में कूदने वाला है, या कोई गांव का व्यक्ति है जो पेस्टिसाइड्स खा के मर जाता है, हर व्यक्ति जो सुइसाइड करता है वो सुइसाइड करने से पहले अपने आसपास के लोगों को हिंट देता है कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है. अचानक नहीं मरता. और जब भी अपने व्यक्ति आसपास में कोई इस तरह की बात करता हुआ आपको नजर आए, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो अजनबी है, चाहे वो क्लासमेट है, अगर वो रेलवे स्टेशन के आसपास, रेलवे ट्रैक के आसपास कुछ खोजता हुआ नजर आए, अगर वो कोई सुइसाइडल स्पॉट के ऊपर बार बार जाता हुआ नजर आए, या फिर वो ऐसी बातें कहता हुआ नजर आए, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्या ये व्यक्ति कोई आत्मघाती कदम तो नहीं उठा सकता है. दूसरी चीज, एक तो सुइसाइड हमेशा हिंट देने की बात होती है. दूसरी चीज, हर व्यक्ति जो सुइसाइडल आइडियाज रखता है वो मरता नहीं है. 3 तरह के सुइसाइड अटेम्प्टर्स होते हैं. एक वो जो मरना नहीं चाहते, बट सुइसाइड इज ए क्राई फॉर हेल्प, कि देखो मैं इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में हूं, मेरी मदद करो, मैं मरना चाहता हूं. इट्स ए क्राई फॉर हेल्प. और उस व्यक्ति को उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट पर बता दिया जाए कि तुम ऐसे बच सकते हो, हम तुम्हारी इस तरह से मदद कर सकते हैं, आओ चलो अपन बात करें, तुम अपनी तकलीफ बताओ, तुम उसको कैसे ठीक कर सकते हो, हम बताते हैं. तो people like Manisha, clinical psychologists, can help these people to help these people. We can talk to them. Not necessarily a clinical psychologist. Even a friend can talk. आप एक अच्छे दोस्त हैं तो एक सुइसाइडल व्यक्ति से बात करें और बात करके उसके मन की बात बाहर निकालें. So people where suicide is a cry for help. दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो अनडिटरमाइंड होते हैं. मरूं या नहीं मरूं, मरना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं. तो ऐसा व्यक्ति जिसके सामने सुइसाइडल अटेम्प्ट इज ए क्वेश्चन वेदर टू डाई और नॉट टू डाई, these people should not be identified, should be identified, and they can be advised so that they are not to attempt suicide. उनको सही टाइम पर सुइसाइड से बाहर निकाला जा सकता है. तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि मेरे को तो मरना ही है. अपने गांव में कहावत है कि बांध बाठोर कुआं में कूद जा. मतलब two methods of attempting suicide. That he will jump into the well and he is tied with a heavyweight stone, so that even if he wants to come out, he will not be able to come out. No chance to survive back again. No chance to survive. So they use more than one method. Yes. They hang themselves and they also ingest the intoxicating substances or poison. So if you find that somebody, कोई आदमी poison की तलाश कर रहा है, या किसी ने खरीद लिया है, या व्यक्ति जो अकेला रहता है और उसके सामान में कोई पॉइजनस चीज मिल गई है,
ही इज ए सीरियस सुसाइडल रिस्क। और उस व्यक्ति के ऊपर आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। उसको इमीडिएटली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उसको इमीडिएटली अगर साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है तो उसको मिलना चाहिए, और उसकी इमीडिएटली दवाएं शुरू की जानी चाहिए। पहली 2 कैटेगरीज के लोग होते हैं 95% जिनको बचाया जा सकता है। ये लोग होते हैं 5% जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन इन 5% को भी बचाया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी है फॉर्मर सुसाइड अटेम्प्टर्स। ऐसे लोग जो एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं और बच गए हैं। ऐसे लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं आते। नॉर्मली ऐसे लोग ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के वार्ड में भर्ती होते हैं, बर्न वार्ड में जले हुए लोगों का जहां इलाज होता है वहां भर्ती होते हैं, या हैंगिंग से जिनको बचा लिया जाता है, ऐसे लोग आईसीयू में एडमिटेड होते हैं। और उन लोगों का अगर प्रॉपर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उनमें दोबारा सुइसाइडल बिहेवियर की संभावना रहती है, दे आर एट रिस्क। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। एवरी पर्सन हु इज अटेम्प्टेड सुइसाइड एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल शुड नॉट बी ट्रीटेड कि ठीक है भैया तेरे फीवर ठीक हो गया, तू चल सकता है, अब घर जा। उसका सुइसाइडल थॉट अगर ठीक नहीं किया तो वो दोबारा कूदेगा और दूसरी हड्डी टूटेगी और आपके पास वापस आ जाएगा। इसलिए हमारे डॉक्टर साथियों को भी ये जरूरी है कि जो लोग सुइसाइडल अटेम्प्ट के साथ हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल। आई थिंक दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली, दे शुड हैव ए फ्रेंड। और डिप्रेशन के रोगी में अगर सुइसाइडल आइडियाज हैं तो हमेशा हम ये एडवाइस करते हैं कि उस व्यक्ति के कमरे में कोई धारदार चीज नहीं होनी चाहिए, कोई रस्सी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज जिससे वो अपने आप को हार्म कर सके वो नहीं होना चाहिए। और उसके पास जो दवाएं हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, डॉक्टर नवेंद्र जी ने आपको पर्चा लिख के दिया है, वो पर्चा सारी दवाएं आप एक साथ उसके पास नहीं छोड़ें, उसको एक ताले में रखें और एक दिन की दवाई आप बाहर निकालें ताले से, चाबी अपने पास रखें, उस रोगी को दें और दूसरे दिन की दवाई फिर रखें। माइंड इट, एक दिन की दवा लेके कोई रोगी मर नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी फैमिली मेंबर की टू टेक केयर ऑफ द मेडिसिन एंड टू टेक केयर ऑफ द पर्सन एंड द कंपनी ऑफ दिस पेशेंट। 24 घंटे उसके साथ कोई आदमी रहना चाहिए अगर सुसाइडल इंटेंट है तो। सर एक जगह बहुत मुश्किल आती है, बहुत सारे लोग जैसे काफी लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि प्रॉब्लम में है, बच्चा प्रॉब्लम में है या वो पर्सन प्रॉब्लम में है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको कोई प्रॉब्लम है, एडमिट नहीं करते कोई प्रॉब्लम है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम कोई पागल थोड़ी है, हम डिप्रेस, हम ऐसे नहीं है कि हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए। सो हाउ डू व्हेन दे आर डायग्नोज्ड? दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि बीमारी को कलंक समझना और उसकी वजह से मरीज को छुपाए रखना। अगर कोई लक्षण है तो किसी को बताना नहीं। मुझे याद है आज के 45 वर्ष पहले जब मैंने करियर शुरू किया था तो मेरा कंसल्टेशन रूम जहां होता था उसके कोई आधा किलोमीटर दूर जाके लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते थे और चुपचाप इधर उधर देखते हुए मेरे पास दिखाने के लिए आते थे कि हम डॉक्टर गौतम से मिलने जा रहे हैं, हमें कोई देख नहीं ले। बरवाड़ा हाउस के पास गाड़ी पार्क की हुई है और धीरे धीरे चलते हुए सिविल लाइंस में मेरी क्लिनिक में आते थे। फिर वहां भी देखते थे कि हमारे कोई पहचान का आदमी तो नहीं है, अगर है तो वहां से वापस लौट जाते थे। इतना स्टिग्मा मेंटल इलनेस का उस समय था। 4 दशक से ज्यादा मुझे काम करते हुए हो गए और अब मैं देखता हूं कि लोग टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने लगे। अब मैं देखता हूं कि गाड़ियों की लंबी कतार सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे कंसल्टेशन चैम्बर के बाहर लाइन में खड़ी रहती है और सिविल लाइंस में उस वक्त ट्रैफिक इश्यू रहता है। तो ये कलंक दूर हुआ है, लेकिन फिर भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपने रोगी को छुपाते हैं और बताते नहीं है।
लेकिन मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है, क्या हम छुपाते हैं? जिन लोगों को ब्लड शुगर होता है उनको छुपाते नहीं है, उनके ब्लड शुगर के ट्रीटमेंट का इलाज करते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर होगा, हाइपरटेंशन हो गया, तो क्या हम उसको छुपाते हैं? अगर किसी को एस्थमा हो गया, सांस की दमे की तकलीफ हो गई, क्या हम उसको छुपाते हैं? क्या थायराइड के पेशेंट को हम छुपाते हैं? तो जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, ये जो बीमारियां हैं, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, उसी तरह से डिप्रेशन, एपिलेप्सी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये मानसिक रोग हैं जो कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों की वजह से होते हैं, और ये कोई कलंक नहीं है। इसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। न कोई पुराने जन्म के पाप की वजह से मनोरोग होता है, ना कोई परिवार की वजह से मनोरोग होता है, और ना ये बात सही है कि एक बार मनोरोगी हो गया तो वो हमेशा मनोरोगी रहेगा। बहुत से लोग मेरे को अब भी आके सवाल करते हैं कि साहब मेंटल डिसऑर्डर इज ऑलवेज ए मेंटल डिसऑर्डर। मैं अपनी प्रैक्टिस में हमेशा ये कहता हूं कि 80% लोग ठीक हो जाते हैं और दोबारा नहीं आते, बशर्ते कि उनका साल भर का या 2 साल का जितना उस रोग के लिए इलाज करवाना चाहिए, उतना इलाज अगर आपने करवा लिया तो उनको दोबारा बीमारी होने की संभावना 80% नहीं रहती। राइट। होता क्या डॉक्टर की कंसल्टेशन से होता क्या है? नॉट मेडिकेशन। नहीं, होता क्या है, दूसरी चीज होती है। डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी, 2 महीने ले गई, बिल्कुल बढ़िया हो गया मरीज, तो अब दवाई की जरूरत क्या है? और अब ये साल भर बाद दोबारा हो गया, ये कहते हुए लोग आते हैं, ये कहते हुए लोग आते हैं। तो उन लोगों को मैं ये समझाता हूं कि आपको अपने इलाज का कोर्स पूरा करना चाहिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, और बहुत सी बीमारियां मानसिक बीमारियों में ऐसी हैं जिनका इलाज लंबा चलता है। लेकिन जो डिप्रेशन की बीमारी है वो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 6 महीने से साल भर में पूरा हो जाता है। और साल भर का ट्रीटमेंट अगर आपने पूरा ले लिया तो मेरे पास बहुत सारे रोगी 15 साल 20 साल बाद आते हैं कि साहब 15 बरस पहले आपने साल भर इलाज किया था, रोगी बिल्कुल ठीक हो गया, 15 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये दोबारा हो गया। अब क्यों हुआ भाई? कि इसकी वाइफ की डेथ हो गई। यानी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट कोई हुई और उसके दिमाग के रसायन में फिर परिवर्तन हुआ, तो फिर ठीक हो जाएगा। दिक्कत क्या है? इसलिए डिप्रेशन इज ए ट्रीटेबल डिसऑर्डर, ये ठीक हो जाता है। डिप्रेशन के बाद आदमी की फंक्शनल रिकवरी पूरी हो जाती है, आदमी की कॉग्निटिव रिकवरी यानी कि उसकी ज्ञानात्मक शक्तियां हैं वो उसकी सही हो जाती हैं, और जो डिप्रेशन के रोगी हैं वो पूर्णतया ठीक होके अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। ये मैसेज मनीषा जी आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नेक्स्ट यही क्वेश्चन रहेगा कि पीपल ऑफन आस्क कि ट्रीटमेंट, बहुत बार तो लोग सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा, हमने 2 साल खा लिया और हम आ गए, लेकिन अभी तो वो गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है। क्योंकि डिप्रेशन का जब एक्यूट ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। यानी कि डिप्रेशन, गंभीर डिप्रेशन की अवस्था में जब रोगी आया तो हम जो दवाई की मात्रा देते हैं, जो काउंसलिंग दी जाती है, जो साइकोथेरेपी दी जाती है, वो ज्यादा रिगरस होती है। 4 से 6 हफ्ते में जब रोगी ठीक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्योरेटिव डोज, यानी क्योर करने के लिए उसको 6 महीने दवाई दी जाती है, जिसमें पीरियोडिकल महीने में एक बार रोगी को दिखाना आवश्यक होता है ताकि उसकी दवाई की मात्रा का समाधान हो सके। और 6 महीने के बाद साल भर जो चलता है उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, यानी धीरे धीरे कितनी दवाई पर उसको मेंटेन किया जाए ताकि वो साल भर होते होते उसकी दवाई को कम करते हुए बंद कर दिया जा सके। एक बार डिप्रेशन हो गया, साल भर ठीक हो गया, तो दोबारा होने की संभावना कम रहती है। और अगर दोबारा उसको रिलैप्स होता है तो हो सकता है 2 साल इलाज लेना पड़े। लेकिन बुराई क्या है? अगर डायबिटीज का पेशेंट 1 गोली रोज लेके अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकता है तो उसी तरह से वही एक सिमिली है, उसी तरह से डिप्रेशन का रोगी भी अपनी 1-2 गोली रोज ले और ठीक हो सकता है। हर आदमी को डिप्रेशन हो सकता है। 10% लाइफ टाइम रिस्क होती है। 100 में से 10 चांसेस ये हैं कि मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि डिप्रेशन एक कलंक है या डिप्रेशन का इलाज कराने से क्या फायदा है।
या सुइसाइडल आदमी है वो तो मरेगा ही, ये नहीं सोचना चाहिए। सर मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें ये चीज देखते हुए भी आती है कि बच्चा जो अभी टीनेजर्स है, यूथ है, दे आर एक्सेप्टिंग कि उनको प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पेरेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है। दे रादर अपने बच्चे को प्रमोट करने के बजाय, अपने बच्चे को भेजने के बजाय वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप, और वो उसको झिड़कते भी हैं, तू तो है ही ऐसा, हाँ तू तो है ही ऐसा, ये भी कहते हैं उसको, बिल्कुल। नाकारा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा और नाकारा शब्द हालांकि आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन लेकिन वो लोग निकम्मा और नाकारा नहीं है जिनके लिए कहा गया है, वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए उनके साथ इसको नहीं जोड़ें। लेकिन बहुत से पेरेंट्स अपने डिप्रेस्ड बच्चों को, तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, प्लीज डू नॉट गिव नेगेटिव कंजंक्शंस टू द चाइल्ड। आप उसको फर्दर डिप्रेस करने वाले हैं ऐसा कह के, बल्कि आप उसको ये कहिए कि ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेगा, तू कर सकता है, इस कमी के बावजूद भी कर सकता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में 40 बार फेल हुआ, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं, यस सर। वो पार्षद के चुनाव में फेल हुआ, वो अपने एजुकेशन में फेल हुआ, वो अपने बिजनेस में फेल हुआ, और 40 बार फेलियर के बाद उसकी पहली सक्सेस जो आई वो थी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन। यस सर। अब्राहम लिंकन वॉज डिप्रेस्ड ऑल थ्रू हिज लाइफ, लेकिन वो हारा नहीं। इसलिए जिस आदमी को डिप्रेशन है उसको हारना नहीं चाहिए। बिग बी जो हमारे हैं आजकल, जिन्होंने अभी कोरोना को डिफीट करके वापस आए हैं, अमिताभ बच्चन, इनको 40-45 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो पर कलकत्ता में रिजेक्ट कर दिया गया था कि योर वॉइस इज नॉट गुड। मुझे याद है वो टाइम, मुझे याद है वो टाइम। और वही अमिताभ बच्चन आज की तारीख में महानायक है, और उसी आवाज के पीछे लोग दीवाने। इसलिए सफलता के लिए कभी भी हाथ में हासिल आ सकती है, कभी भी आ सकती है। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को जो डिप्रेस्ड हैं ये नहीं कहें कि तू बेकार है, वो कर सकता है और जरूर कर सकता है, उसको प्रोत्साहित करते रहिए। एंड सर पेरेंट्स को दूसरी चीज जो नॉन एक्सेप्टेबल होती है, वो कई माताएं अपने बच्चों को जो मेंटली रिटार्डेड होती हैं या जो ADHD के बच्चे होते हैं, इन बच्चों के साथ भी डिप्रेशन हो सकता है। जी बिल्कुल सर। बच्चा ये जानता है कि मेरी उम्र का फला बच्चा ये कर रहा है और मैं उतना ही बड़ा हूं, उतनी उम्र का हूं, दिखने में उससे स्मार्ट हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इनबॉर्न इंटेलिजेंस तो है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकता, उसके इंटेलिजेंस लेवल कम है। माँ बाप को ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, मेरा बच्चा रिटार्डेड हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब फिल्म एक्ट्रेस के सबके नाम याद है उसको गाने याद रहते हैं। एक स्किल में वो बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरी स्किल में वही बच्चा कमजोर हो सकता है। मेरे से ज्यादा मनीषा जी इस बात को जानती हैं, क्योंकि ये एजुकेशनली जो पीछे बच्चे हैं उनको ज्यादा हैंडल करती हैं, मेरे से ज्यादा करती हैं। मैंने अपने लाइफ टाइम में जितने किए होंगे उससे ज्यादा इन्होंने अपनी छोटी उम्र में कर लिए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये एक और चीज है कि आपका बच्चा अगर डिप्रेस्ड है, आपका बच्चा हल्का सा रिटार्डेड है, आपका बच्चा अगर ADHD है, उसको अटेंशन डेफिसिट है, या हल्का सा ऑटिज्म है, अपने आप में संकुचित रहता है, खोया सा रहता है, इंट्रोवर्ट ज्यादा है, तो उस बच्चे को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उसको एक अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से उसको मिलना चाहिए। लर्निंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं काफी। बिल्कुल बिल्कुल, LD में तो आप मास्टर है, मैं क्या हूँ। हाँ बताइए, अगला सवाल। आई थी मेरे पास, उसने मुझे यही बोला था कि मैं आंसर क्लास में नहीं दे पाती हूँ, मैं किसी को बोल नहीं पाती हूँ, तो मैं तो बैड गर्ल हूँ ना। तो मैंने यही बोला कि बेटा वाई बैड गर्ल, आप क्यों बैड गर्ल है? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरे टीचर्स को मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, मैं टाइम से कॉपी नहीं कर पाती हूँ। सो LD इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इतनी सारी LD इज ऑल्सो। एनीवे वो विषय कभी और लेंगे। अगला सवाल। सर आई वुड वांट टू नो कि आप हाउ कैन दे वर्क, जो टीनेजर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है
इन बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से क्रिएटिविटी में लगाना चाहिए। कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं, कुछ अलग अलग बच्चों की अलग अलग अभिरुचि होती है। प्लीज आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द स्किल विच द चाइल्ड हैज, इनेट स्किल उसके अंदर है, वो अपने को उस स्किल को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उस स्किल में वो बच्चा एक्सेल करे, ये अपन कर सकते हैं और उससे उसका डिप्रेशन भी बाहर निकलेगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग इज ए कॉमन मेथड which most clinical psychologists use. Yes. And play therapy is another area कि बच्चों को खेलने के लिए प्ले रूम में छोड़ दो और वो क्या देखता है, कौन सी चीज पिकअप करता है, वो पेन एंड पेंसिल उठाता है, वो टॉय उठाता है, वो किसी चीज को डिसमेंटल करता है, वो किसी चीज को जोड़ता है वापस खोलता है, या वो टुकड़ों से पकड़कर उनका इंसान की शक्ल बना देता है, या टुकड़ों को यूज कर करके वो इंजन बना देता है, तो उसकी अभिरुचि का पता लग जाता है। ऐसे बच्चों की स्किल क्या, एब्सोल्युटली उसको आइडेंटिफाई करें, आस्क हिम टू पुट हिज इमोशंस इन दैट एंड आई एम श्योर यू कैन हैंडल देम। यस यस डेफिनेटली सर। सर, जिन लोगों को खुद को डिप्रेशन होता है, those people who themselves suffer from depression, how do they react? What is their reaction when they come to you? People who are themselves depressed, they are suffering. They can identify. They are actually holding their tears. You see, they are holding their tears. आप उनको प्यार से थोड़ा सा बात करें और उनको एम्पैथेटिकली बात करें। एक तो होती है सिंपैथी। सिंपैथी में क्या होता है कि दूसरे के प्रति हम सिंपैथाइज करते हैं, अरे यार बेचारा बना देते हैं कि भाई हम तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, बोलो हम क्या कर सकते हैं, कोई रुपए पैसे की जरूरत हो तो हमें बताओ, या तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, और बड़ा दुख हुआ कि तुम इतने सुस्त रहते हो, तुम परेशान रहते हो। ये तो सिंपैथी होती है। एक होती है एम्पैथी, feeling with the person and sharing his emotions. मित्र आओ अपन बात करते हैं, मित्र आओ अपन बात करते हैं, हम दोनों के मन में क्या है अपन आदान प्रदान करते हैं, आओ चलो बैठकर बात करें, और हम दोनों शेयर करते हैं, बशर्ते कि वो मित्र इस लायक है कि आप उसके साथ बात कर सकें। So confide in that individual. कई बार क्या होता है कि लोग मित्र बन के उसकी बात को ले लेते हैं और फिर बात निकली तो दूर तलक जाएगी, चली जाती है। मित्र बन के उसकी बात को ले लिया जाता है और उस बात को फिर शेयर कर दिया जाता है लार्जर ग्रुप्स में। उस बात को शेयर कर दिया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो उस व्यक्ति को नुकसान कर सकता है। सीक्रेट टू योरसेल्फ, और वो एक प्रोफेशनल कर सकता है, इसलिए आप हमेशा अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, या बात शेयर करने के लिए कोई मित्र चुने तो ऐसा चुने जिसको आप मानते हैं कि वो आपकी बात को कहीं और नहीं करेगा, तो उस समय आपकी बात बाहर निकल जाएगी और आपका दर्द बांटने से बंट जाएगा। अगला सवाल मनीषा जी। Now I would request the viewers if they have some questions they can come up with their questions. आप लोगों के पास क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन के साथ आ सकते हैं। वरना कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन आए हैं तो उनको अपन ले सकते हैं। हाँ जी सर। आर देयर एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स? आप लिखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैसेज वाज इनफैक्ट आप इतना अच्छा बोलते हैं कि आप जो बताते हैं उससे सबकी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही क्लियर हो जाती है। सो आई डोंट थिंक सो पीपल वुड लाइक टू आस्क सो मच। मैं अपनी क्लास के एंड में अक्सर यही कहता हूँ कि एनी क्वेश्चन, और जब कोई क्वेश्चन नहीं होता है
तो आइदर वेरी वेल अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। Sir, there is अच्छा, a ये question, सवाल आया है। sir, कि हाथ पैर बहुत ढीले क्यों होते हैं, बॉडी क्यों सिंक होती है? वो एंजाइटी की वजह से होती है। एंजाइटी वो स्टेट होती है जिसमें कि व्यक्ति दुविधा में होता है कि मैं करूं या नहीं करूं। विरोधाभासी विचार, अंतर्द्वंद जब दिमाग में आदमी के चलते हैं तो आदमी के दिमाग में कुछ ऐसे रसायनों का रिलीज होते हैं जो नीचे आके उसके दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं, उसका मुंह सूख जाता है, उसके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं और उसको लगता है कि मेरा दिल डूबा जा रहा है। ये अक्यूट एंजाइटी का लक्षण होता है। और इसमें खास तौर से जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इस तरह के जो रसायन होते हैं जो कि दुख से रिलेटेड होते हैं, उनका ज्यादा शरीर में रिलीज होता है। इसको हम कहते हैं HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। हमारा हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है जो कि ठीक हमारे यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट पे ज्ञान केंद्र जो होता है, और हमारे दोनों ये जो मैंने लगा रखे हैं ईयरफोल, इनका बीच का और इस पोर्शन के बीच के 3 स्ट्रेट लाइंस को हम मिलाएं तो ये तीनों लाइंस जहां जाके अंदर दिमाग में मिलती हैं वहां हमारा हाइपोथैलेमस होता है। और इस हाइपोथैलेमस से, ग्रंथि से, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स फिर हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं, मुंह सुखा देते हैं, हाथ पांव में नमनेस आ जाती है। अगर आपने भगवत गीता में अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा हो, भगवत गीता का अध्याय 29, 30 और 31, पहला अध्याय में 29, 31 तक श्लोक जो है उनको पढ़िए आप। उसमें अर्जुन का विषाद आता है। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहता है कि मैं युद्ध को नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि जो मरेंगे वो लोग वो होंगे जो मेरे ही अपने होंगे, और युद्ध में जीतने के बाद मैं क्या प्राप्त करूंगा? मैं प्राप्त करूंगा वो जिसको प्राप्त करने वाले, जिसको एंजॉय करने वाले इस दुनिया में बचेंगे ही नहीं, सब मर जाएंगे। तो ऐसी युद्ध को जीतने से और ऐसे राज्य को प्राप्त करने से मुझे क्या फायदा? मुझे नहीं लड़ना। लेकिन कृष्ण उसको कहता है कि मामनुस्मर युद्धस्य, तुम सत्य के लिए लड़ाई करो। तो अर्जुन कहता है कि सीदंति मम गात्राणि मुखश्च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, कि मेरे हाथ पांव बिल्कुल ढीले होते जा रहे हैं। सीदंति मम गात्राणि मुखश्च परिशुष्यते, मेरा मुख सूखता जा रहा है। सीदंति मम गात्राणि मुखश्च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे में, मेरा शरीर जैसे कंपायमान हो रहा है और घूम रहा है। रोम हर्षस्य जायते, मेरे जो रोम हैं, बाल हैं, वो शरीर के ऊपर सीधे खड़े होते जा रहे हैं, पाइलोरो इरेक्शन हो रहा है। और निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ओ केशव, मुझे हर चीज विपरीत होती हुई नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। गांडीव श्रंथ थे, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है और धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। ये सारे के सारे एंजाइटी के लक्षण अर्जुन ने 5,500 साल पहले कृष्ण भगवान को बताए थे। तो मैं बात कर रहा था अर्जुन की। जी जी जी। तो एंजाइटी की वजह से, जैसे अर्जुन के हाथ पांव ढीले हो गए थे और उसने धनुष छोड़ दिया था, उसी तरह से जब आप एंशियस होते हैं तो आप भी अपने रसोई के बर्तन छोड़ के और बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। That is how it is happening. तो इसलिए जब भी the person loses his pen, he cannot write. उसको लगता है कि मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो acute एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर की स्टेट होती है। और क्या सवाल है? आने दीजिए। क्वेश्चन था कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल कैसे करें? एब्सोल्युटली। देखिए, उसको इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो हम गोली देते हैं जो जीभ के नीचे रख लो, बहुत आसान है, लेकिन भगवान कृष्ण के पास वो गोली नहीं थी। उस समय उस गोली का इन्वेंशन नहीं हुआ था। आज के 5,500 साल पहले ये गोलियां तो आई हैं सब 1960s के बाद।
तो उस समय क्या किया, उसके लिए आपको भगवत गीता पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो एक तो आप पढ़िए, दूसरा मैं आपको इमीडिएट जो तरीके हैं वो बताता हूं एंजाइटी कम करने के लिए, कि आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए। एक स्थान पर क्रॉस लेग्ड, या तो आप पलाटी मार के जमीन पर बैठ जाइए, या आप क्रॉस लेग करके कुर्सी के ऊपर एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख के बैठ जाइए, हाथ सीधे कर लीजिए योग की मुद्रा में, और डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास आप लीजिए, और 11 बार आप दीर्घ श्वास लेंगे। जितना गहरा लेते हैं उतना ही गहरा उसको निकालिए। आप देखेंगे कि आपका जो पैनिक है वो एवर्ट हो गया। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो प्राणायाम कर सकते हैं। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, एक भ्रामरी प्राणायाम होता है जो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को सिखाता हूं। तीसरा प्राणायाम जो है वो कपालभाति होता है। एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है जिसमें हाथ ऊपर करके जैसे लोहार धोंकनी से और हवा को बाहर निकालता है, उसी तरह से आप अपने सांस को बाहर निकाल सकते हैं। जो कि जो लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं आचार्य श्री श्री वाली, वो लोग भस्त्रिका प्राणायाम का यूज करते हैं। बाकी बहुत सारे प्राणायाम हैं जो कि 12 तरह के प्राणायाम हैं। मैं आपको प्राणायाम पर आज बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दीर्घ श्वास अनुलोम विलोम प्राणायाम ये आप इमीडिएटली कर सकते हैं। और एक आसन होता है शवासन जिसको कहते हैं, कि आप जमीन पर लेट जाएं और सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर के हर मसल को बिल्कुल ढीला करें, और आप ऐसा फील करें जैसे आपका शरीर आपकी जहां आप लेटे हुए हैं उस पृथ्वी के ऊपर बोझ है। उसको शवासन का नाम दिया गया है, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। और मनीषा जी के पास आप जाएंगे तो ये आपको प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन सिखाएंगे, PMR, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। ये स्किल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिखा सकते हैं, डॉक्टर मनीषा माहिर हैं इसमें, मैं जानता हूं इस बात को। वो आप करें जी। मस्कुलर रिलैक्सेशन की कोई भी एक्टिविटी आप करें। Sir, then we have another Do you always question. recommend medication based therapy? No. Medication based therapy is required in acute cases, cases where you cannot handle with psychological maneuvers. And secondly, medication is not something which is not to be taken. Medication के प्रति रोगी का एटीट्यूड जो है, रवैया जो है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मेडिकेशन क्यों नहीं लें? अगर हमारे हार्ट अटैक होता है और उसमें नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी लाने के लिए हम मेडिकेशन लेते हैं, तो क्या हमें उस मेडिकेशन को चालू नहीं रखना चाहिए? क्या हम मर नहीं जाएंगे उसके बिना? उसी तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी के वजह से अगर हमारी डे टू डे फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, अगर हमारा इन बीमारियों की वजह से कॉग्निशन, हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो उस मेडिकेशन को लेके उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपत्ति क्या है? जैसे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मेडिकेशन तो ऐसा नहीं है जो आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। इसलिए मेडिटेशन एंड मेडिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मेडिसिन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज है, एक दूसरे की सहायक हैं। इनको लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल। सर, देयर वाज अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया था कि आई थिंक अबाउट द फेंट, वो ऊपर चला गया क्वेश्चन, आई हैव टू रीरीड इट। डिप्रेशन की वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं क्या? सीजर भी आ सकते हैं क्या? डिप्रेशन से देखने को मिलते हैं, तब हाउ डू ट्रीट देम? सीजर्स जो हैं, कन्वर्जेंस जिनको कहते हैं, मिर्गी का दौरा जिसको कहते हैं, वो अलग बीमारी है। और सामान्यतया दांती लग के बेहोश हो जाना अलग बीमारी है, जिसको हम हिस्टीरिया की बीमारी कहते हैं। और जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, मन में उदासीन होते हैं और अपने कॉन्फ्लिक्ट को किसी से बाहर कह नहीं सकते, ऐसे लोगों में डिप्रेशन के साथ हिस्टीरिया की बीमारी, जिसको कि डिसोशिएटिव डिसऑर्डर आज की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो साथ साथ होती है। अक्सर महिलाओं में ये देखा गया है कि वो अपने पारिवारिक झंझटों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती हैं
तो उनको बेहोशी आ जाती है, जिस जगह है वहीं गिर जाती है। उनको हाथ पांव में झटके नहीं लगते, उनके हाथ पांव में कहीं ऐंठन नहीं आती, कन्वल्जन्स नहीं आते, दांती लग जाती। और उन महिलाओं को जब वो होश में आती हैं, अक्सर आप पूछते हैं तो वो कहती हैं कि हमें सुनाई तो देता है लेकिन हम बोल के जवाब नहीं दे सकते। राइट। उनका इलाज अलग होता है। और जिनको हाथ पांव शरीर अकड़ जाता है, मुंह में झाग आ जाते हैं, जबान कट जाती है, गिर जाते हैं, गिरने की वजह से चोट लग जाती है और 1-2 मिनट तक उनको बिल्कुल होश नहीं रहता और 2-3 मिनट बाद उनको कंफ्यूजन होता है और 10-15 मिनट बाद उनको होश आता है, तो उनको ये पता नहीं होता कि उनको क्या हुआ था, याददाश्त नहीं रहती। उस बीमारी को और सामान्यतः दांती लगने की बीमारी को अलग करने की आवश्यकता है। ये जो दूसरी बीमारी है जिसको अक्सर लोग सीजर कहते हैं, दांती लगने वाली, वो सीजर नहीं है, वो डिप्रेशन के साथ हो सकती है। लेकिन कन्वर्जेंस जो है वो अपने आप में अलग बीमारी है, जो मिर्गी का रोग है, एपिलेप्सी है या सीजर डिसऑर्डर है, उसको अलग से इलाज करने की आवश्यकता है। सर, वन मोर थिंग, लोग दवाई जब लेते हैं तो एक तो वैसे मेडिसिन को लेके बहुत सोचते हैं कि हम साइकियाट्री की, मानसिक रोग की दवा खाएं कि नहीं खाएं। आपने ऑलरेडी बताया क्यों नहीं खाएं? यस, एग्जैक्टली। तो वो उसका गूगल सर्च करते हैं और गूगल सर्च करने के बाद टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। गूगल सर्च में गूगल आपको वो सारी सूचना देगा जो 1000 में से एक व्यक्ति को भी अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ है तो दवाई की कंपनियां जो दवाई बनाती हैं उनके लिए ये बाध्यता है कि 1000 में से एक व्यक्ति को भी जिन पर ट्रायल हुआ है और एक लक्षण भी हुआ है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, वो भी उनके लिए साइड इफेक्ट की लिस्ट में लिखना जरूरी होता है। तो वो साइड इफेक्ट की लिस्ट अगर आप पढ़े तो आप किसी भी बीमारी की कोई दवाई नहीं ले पाएंगे। तो आप नहीं करना चाहिए, खास तौर से बीमारी के बारे में, क्योंकि बीमारी में भी कई बार ऐसा होता है कि गूगल में एक ही बीमारी डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण होते हैं क्योंकि आप में है ही नहीं, लेकिन आपकी पर्ची पर चूंकि डिप्रेशन लिखा हुआ है तो आप सोच सोच के वो लक्षण पैदा कर लेते हैं अपने आप में। इसलिए गूगल सर्च साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए मैं एडवाइस नहीं करता। अगर आपने कर लिया है तो ये मान के चलिए कि गूगल में जितनी लिखी है वो सारी चीजें आपको नहीं होने वाली है। जितने साइड इफेक्ट उस बीमारी के लिखे हैं 1000 में से एक व्यक्ति आप ही क्यों है, वो बाकी 999 में आप क्यों नहीं है, इस बात को भी आप सोचें और गूगल सर्च के ऊपर विश्वास नहीं करें। दूसरी चीज, गूगल कोई ब्रह्म वाक्य तो नहीं है। गूगल कौन है? एक व्यक्ति नहीं है। गूगल हजारों लोगों का एक समूह है जो दुनिया भर में अलग अलग विषयों पर काम करता है, सामग्री इकट्ठी करता है और उस इकट्ठी सामग्री को आपको प्रेषित कर देता है। इसलिए गूगल सर्च हमेशा 100% सही हो यह नहीं हो सकता। आपका स्पेशलिस्ट आपको कहता है वो बात 100% सही है क्योंकि उसने 3 साल तक उस पर अध्ययन एमडी के लिए किया है, उसके बाद उसने स्पेशलाइजेशन किया है, जैसे नवेंदु जी ने 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष सीनियर रेजिडेंसी और की है और उसके बाद स्पेशलिस्ट बने हैं और उसके बाद जीवन भर वो आदमी मरीज देखता है और अपने मरीजों में लक्षण देखता है। तो इसलिए आप हमेशा गूगल सर्च पर विश्वास नहीं करें। डॉक्टर नवेंदु, डॉक्टर मनीषा जो कहती हैं उस बात पर आप विश्वास करें। थैंक यू सो मच सर। मेनी अ टाइम्स आई से दिस, बहुत बार मैं यही बोलती हूँ कि गूगल आपको पर्सनली नहीं जानता कि वो आपको पर्सनली डायग्नोस करे या आपके पर्सनल सिम्टम्स को देखे या आपको देखे वर्चुअली, आपको प्रैक्टिकली देखे। सो यू आर वेरी राइट टू से अबाउट। वेरी वेल सेड मनीषा। सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने अपना जो समय निकाला, बिकॉज आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और उसमें आप इस टॉक के लिए आ पाए, थैंक यू सो मच। आपको मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आज आपने मेरा दिन बहुत अच्छा कर दिया। आज मैं लगातार 70 मिनट आपको देख सका, जो कि मैं अक्सर नहीं देख पाता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू सर।
Thank you, Manisha ji, for your kind invitation. And thank you, all viewers who have Yes. heard me and who have found. I hope they will find something useful. Whatever I have spoken is not from books, it is all from Book of Life. I remember, sir, it is book of knowledge. And you have Book always of- been inspiring and you have always been saying कि सरस्वती बांटने से बढ़ती है. तो जो आपने ज्ञान सबको दिया है, जो आपने ज्ञान हमको दिया है, तो डेफिनेटली हम लोग उसका पूरा यूज करेंगे. एंड आई ट्राई टू कीप योर वर्ड्स टू ट्रेन. इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट आई कैन गिव मोर व्हाट आई हैव, व्हाट आई टुक फ्रॉम यू. I wish you all the best. You will do well in your life and you will do better than me. I am confident about it. Because you have many, many decades to work and I have little time to work. That is a truth. Okay. Bye bye. Thank you so much. Okay. Thank you so much everyone for joining for this video. And you can comment me, you can suggest me topics you would like to hear more. आप जो भी topics और सुनना चाहेंगे, जिसके ऊपर आप talks चाहेंगे, so do suggest me. Write it in the comment box. You can directly message me also about all those topics. Thank you so much, all of you, for joining and listening to us. Have a wonderful day and a very happy Independence Day to all of you. Take care.